आपके बारे में जितना बोलना चाहिए वो इधर नहीं बोल सकते सो 12 क्या बात कर रहा है यार। तो ये बहुत गलत लग रहा है। बहुत गलत लग रहा है तुझे। अगर मैं तुझे ये बोलूंगा कि भाई अगर तूने ये मेरा ये मील नहीं लिया तो आगे जाके तुझे हॉस्पिटल के पैसे देने हैं, तेरा फ्यूचर बर्बाद है, मर जाएगी तू 50-60 साल में मर जाएगी तो। The first name that is coming to my mind, which is very recent, is NBA Chaiwala. So, of course, now since it was a disastrous thing, I don't think it was done intentionally. Yeah, it is not done intentionally. See the thing. Hello, and welcome to our series of podcasts. Today we have Aman with us. So, Aman is a fellow marketer and a very good friend for around how many years? 12, 13, 14. क्या बात कर रहा है यार। Okay, so for around 12-13 years. And so I guess everything that we know about marketing and everything that we have learned about marketing in all these years is something that we have learned together because our choreographs are very similar. We started the journey on a very same page. We started the journey at a very same age. And I think we have always been in discussions of ये trend चल रहा है, ये trend नहीं चल रहा है, ये करना है, ये नहीं करना है. Even today, if I feel like I'm stuck somewhere, I just pick up my phone and give him a call, and he's there, and I think he can say the same for me. Yeah. Yeah. Okay. उसे पैसे भेज देना. So yeah. So Aman, tell me, how is it going? How is it going for you? How is it going? Great. Thank you for the introduction. सही चल रहा है. तू भी दे सकता है, मैं इंट्रोडक्शन में बुरा नहीं मानूंगी. नहीं भाई, वो बोलने के लिए होनी चाहिए ना बातें. अच्छा, बोलने के लिए बोल. आपके बारे में जितना बोलना चाहिए वो इधर नहीं बोल सकते सो तो ये बहुत गलत लग रहा है. बहुत गलत लग रहा है तुझे. बट ओके, ठीक है. Okay, so today we are going to be discussing about some social media marketing and marketing in general, and the overall aspect of it, how it works, how it is, and everything around that. So I know what marketing is for me. Marketing for me is something that how to portray your brand at the right place, how to do positioning of your brand and everything. But I want to know from you, how do you see it? What is marketing for you? I think marketing is nothing. It is just observation. How you observe things. बहुत सारे अलग अलग क्लाइंट्स रहते हैं हमारे पास में, बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स के क्लाइंट रहते हैं, बट उनका एंड गोल यही रहता है कि दे वांट सेल्स, राइट? ऑफ कोर्स. हाउ यू ऑब्जर्व पीपल. आप लोगों को कैसे बताएंगे कि ये मेरा ब्रांड है. मान लीजिए हमारा कोई हेल्दी फूड ब्रांड है फॉर एग्जांपल. अब हमको उनको क्या बताना है कि अगर आप हेल्दी नहीं खाएंगे, ठीक है, तो इंडिया इज़ अ हार्ट डिसीज़ कैपिटल, इंडिया इज़ अ शुगर कैपिटल. फोमो मार्केटिंग जिसको हम बोलते हैं कि उनके अंदर एक डर नहीं बिठाएंगे, तो वो उसका एक तरीका हो गया. तो इट इज़ लाइक कि ऑब्जर्वेशन करना कि क्या क्या लूप होल्स हैं मार्केटिंग के अंदर. ठीक है, कि अगर मुझे हेल्दी फूड मेरा प्रमोट करना है, मैं तुझे बोलूँगा कि यार ये मेरा मील है, ये ले लो. क्यों लेगी तू? अगर मैं तुझे ये बोलूंगा कि भाई अगर तूने ये मेरा ये मील नहीं लिया तो आगे जाके तुझे हॉस्पिटल के पैसे देने हैं, तेरा फ्यूचर बर्बाद है, मर जाएगी तू 50-60 साल में मर जाएगी. तो ऐसा कुछ मैं तुझे डराऊंगा, फोमो क्रिएट करूंगा. तो दैट इज व्हाट मार्केटिंग इज. हीरोगिरी इसमें नहीं, इसमें राइट. सो दैट इज व्हाट मार्केटिंग अकॉर्डिंग टू मी. करेक्ट. I totally get your point. मतलब तू ये कहना चाहता है that need create करके demand बनाना is marketing. Demand and supply. Demand and supply. Yeah. Of course, it all goes back to living standard. Yeah. but totally, I totally agree to your point. That is a huge aspect of it. Yeah. So let's talk about some social media hacks and social media trends, because these days marketing is majorly social media, right? Because that is the biggest platform that we have. अभी पहले वो जो billboards होते थे, GSBs होते थे, रेडियो होता था, that is still there and it still works. But social media is a platform where it works in a better manner because वहाँ पे reach 0 to 100 बहुत जल्दी चली जाती है. आपने एक बिलबोर्ड लगाया, आपको 1 महीने तक 2 महीने तक कंटिन्यूसली लगाना पड़ेगा, तब आपको थोड़ी रीच मिलेगी. और आप उसको एनालाइज भी नहीं कर सकते. करेक्ट, आप उसको एनालाइज भी नहीं कर सकते. मतलब ऑफ कोर्स एजेंसी एंड से तो वो बेटर होते थे, ट्रैक नहीं होता था. बट सिंस दैट सोशल मीडिया इज देयर, तो अब 0 to 100 रीच बहुत जल्दी होती है. आप एग्जैक्ट फिगर्स पता कर सकते हो कि आपका क्या रीच है, क्या लाइक्स है, क्या कमेंट्स एंड एवरीथिंग. सो tell me some social media hacks that you feel that work. Bro, for me, there is no hack for social media marketing. There is algorithm, there is trends.
नथिंग एल्स। अगर अभी मान लीजिए कि अभी सोशल मीडिया पे नई नई अपडेट्स आती रहती है, ठीक है, थ्रेड्स आया, ठीक है, अब इसके बाद में एक नई अपडेट आई है कि हम किसी रील को जब शेयर करते हैं तो उसके वहाँ पे रहता है, नीचे एक ऑप्शन रहता है कि उसका नोट्स करने का, नोट्स वाला जो नया ऑप्शन आया, तो दैट अभी क्या है, वही मार्केटिंग है। अभी मैं किसी रील को देखा है, मैं मेरी कोई क्लाइंट की रील है, मुझे उसको प्रमोट करना है और लोगों से भी प्रमोट कराना है, तो ठीक है, मैंने उस रील के नीचे गया, उस नोट्स में मेरा कुछ नोट डाल दिया, तो जितनी मेरी फीड है सबको वो नोट्स दिखेंगे। ऐसी 10 लोगों से आपने करा दिया, आपकी रीच ऐसे ही बढ़ गई। तो दिस इज सॉरी व्हाट इट इज ऑलवेज एल्गोरिदम, सोशल मीडिया एल्गोरिदम, ठीक है। लाइक्स शेयर जितने होंगे उतने आपके व्यूज बढ़ेंगे, और हैक जैसा कुछ नहीं होता है मेरे हिसाब से। इट इज ऑलवेज फॉर मी, इट इज कंटेंट इज द किंग इन सोशल मीडिया मार्केटिंग। आई एग्री, या आई तो टोटली जितना अच्छा आपका कंटेंट है, जितना आप लोगों को कनेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है, वो आप मीम से कनेक्ट कर रहे हो, आप इमोशनली कनेक्ट कर रहे हो, आप कैसे भी कनेक्ट कर रहे हो, तो वही है मार्केटिंग मेरे हिसाब से। देयर इज नो हैक फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग, इट इज जस्ट प्रोसेस। It's the process, agree. And you have to trust the process. You have to What people don't understand it, उनको लगता है कि यार हमने कल फोटो डाली थी या हमने तो 4 दिन से लगातार हम फोटो डाल रहे हैं, हमारी सेल्स क्यों नहीं हो रही है, रीच क्यों नहीं हो रही है? ऐसे नहीं होती भाई, ऐसे नहीं होती, ऑफ कोर्स। ऐसे सेल्स नहीं होती। तो फिर बहुत सारे लोग मेरे पास में आते हैं कि 1 महीने में हमारे इतने फॉलोअर्स ग्रो कर दीजिए। मैं मना कर देता हूँ, क्योंकि मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता। मैं आपको कंटेंट का प्रॉमिस कर सकता हूँ कि कंटेंट आपको जो मिलेगा आप उसमें सेटिस्फाइड रहेंगे और आप देखेंगे कि आपका सोशल मीडिया ग्रो हो रहा है। पर मुझे आगे कोई बोले कि मुझे इतने फॉलोअर्स चाहिए, जो एक मार्केटिंग एक मिथ बनाया हुआ है बहुत लोगों ने, वो हमको मिथ ब्रेक करना है। आई एग्री, एंड देयर इज नो वे टू इंक्रीज फॉलोअर्स। Yeah. आई टेल यू व्हाई, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज अभी हर किसी को सेलिब्रिटी बनना है, राइट? पहले मुझे लगता है कि इन्फ्लुएंसर एंड कंज्यूमर का जो रेशो है वो इतना ज़्यादा वियर्ड हो गया है कि एवरीबडी वांट्स टू बी एन इन्फ्लुएंसर, ठीक है, सबको इन्फ्लुएंसर बनना है। आई एम श्योर आपको भी इन्फ्लुएंसर बनना है। आपने भी कभी सोचा ही होगा कि मुझे टिकटॉक पे जाके रील्स बनानी है, कभी ना कभी लॉकडाउन के टाइम कभी ना कभी तो सोचा होगा। हाँ। सो हर किसी को इन्फ्लुएंसर बनना है, सो इसीलिए लोग अपने नंबर ऑफ फॉलोअर्स और नंबर ऑफ फॉलोइंग का रेशो बहुत अजीब रखते हैं। किसी को भी फॉलोइंग, नोबडी वांट्स कि उनकी फॉलोइंग बढ़े, सबको फॉलोअर्स तो बहुत चाहिए, फॉलोइंग नहीं बढ़ानी है। सो अपेरेंटली दे डोंट फॉलो अदर पेजेस, एंड क्योंकि वो ऐसा करते हैं तो किसी के भी फॉलोअर्स कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि कोई किसी को फॉलो नहीं करना चाहता है, क्यों करेगा? तो इसलिए आपके पेज पे इंट्रोडक्टरी कंटेंट, आपके पेज पे इंफॉर्मेटिव कंटेंट, आपके पेज पे ऐसा कंटेंट जो एंटरटेनिंग हो, और आपके पेज पे ऐसा कंटेंट जो सामने वाले को कुछ ना कुछ बेसिकली ज्ञान दे। क्योंकि आज हर इंसान के पास व्हाट्सएप, आई एम सॉरी, हर इंसान के पास फ़ोन है, उनके फ़ोन में इंस्टाग्राम, फेसबुक है, और वो अपने फ़ोन में या तो कुछ बनते हुए देख रहे हैं, खाना, कॉफ़ी, पूल, स्विमिंग पूल, सीमेंट का स्विमिंग पूल, बैम्बू का स्विमिंग पूल। हैव यू सीन दोस वीडियोस? या आई हैव सीन दोस वीडियो। और मुझे ऐसा लगता है कि एकदम रैपिडली ट्रेंड जो है ना वो चेंज हुआ है। पहले लोग ऑफलाइन मार्केटिंग में ज़्यादा फोकस करते थे। आज से मैं बहुत पुरानी बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ 5-6 साल पुरानी बात। ऑफलाइन मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे थी उस टाइम पे, लेकिन जब से लॉकडाउन आया है मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है वो फर्स्ट प्रायोरिटी बन गए किसी भी कंपनी के लिए मार्केट करने के लिए, ठीक है। करेक्ट। सबके पास सेलफोन है, जियो आ गया, जियो के बाद में और लोगों के पास में इंटरनेट अवेलेबल हो गया। करेक्ट। अगर कोई ब्रांड सोशल मीडिया पे अब नहीं है तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। लोग अभी इस चीज़ से अवेयर नहीं है, अभी ऑब्वियसली अवेयर हो रहा है धीरे धीरे, बट इफ़ यू आर नॉट ऑन सोशल मीडिया ब्रो, आप आपका बिजनेस नहीं चला पाएंगे। If you're a business that you have to be on social media, I agree, because social media पहले it started as a fun platform, then it became a catalog. अभी बीच में it was a catalog कि मतलब कोई आपके ब्रांड या आपके रेस्टोरेंट या किसी सर्विस या प्रोडक्ट के बारे में सर्च करता था गूगल पे, उसके बाद उन्होंने सर्च करना स्टार्ट किया सोशल मीडिया पे, तो आपका वो एक कैटलॉग था, अच्छे फोटोज डालो, वीडियोज डालो कि आपका प्रोडक्ट कितना सुंदर है। बट अभी इट इज़ नॉट इवन अ कैटलॉग, इट इज़ द वे टू रीच पीपल, राइट? आप तो सोशल मीडिया के बिना तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी स्कोप ऑफ इट. Obviously. Have you seen that recent trend on social media where you can put a comment on somebody's story? Yeah. And that comment stays there. Yeah. Many brands are doing these things, like Zomato, Swiggy, बहुत बड़े brands जो ये कर रहे हैं. और this is what marketing is. कि आप ये नहीं बोल सकते कि marketing पता है एक myth बन गया है लोगों के मन में, जो कि हम ही है जो ब्रेक कर सकते हैं, हम जैसे लोग हैं जो ब्रेक कर सकते हैं. Of course. Posting is not marketing. Posting in social media is not marketing.
करेक्ट. ठीक है. This thing I keep on repeating in front of my clients again and again. मैं सारे clients को ये बात बोलती हूँ कि पोस्ट करना एक फोटो से आपको ना तो रीच मिलेगी ना ROI मिलेगा. आपने वो फोटो को सुंदर करके पोस्ट कर दिया तो शायद रीच मिल जाएगी पर ROI नहीं मिलेगा. ROI के लिए आपको you have to go back to the 5 P's of marketing. Yeah. Product, place, promotion, placement. You have to go there. Then you have to उसके हिसाब से आपका प्रोडक्ट का क्या प्लेसमेंट है, क्या आपका ब्रांड कहाँ पोजीशन रखता है, वो सब के हिसाब से you have to make a strategy, and through that strategy you have to create content, and then that content has to be uploaded also with a strategy. So it's a very long process. You cannot just upload something and expect ऑब्वियसली. अभी लोग, बहुत सारे लोग रहते हैं ना, अनअवेयर रहते हैं सोशल मीडिया के बारे में. वो बोलते हैं कि हमारा देखते हैं कि कोटेशन देखते हैं कि इतना प्राइसिंग क्यों है, बस पोस्ट ही तो करना है आपको. भाई अगर पोस्ट करना होता तो तुम कर लेते, नहीं हो पाता है ऐसे. क्लाइंट्स चाहिए ना. अरे कोई दिक्कत नहीं है. सोच ले, कोई दिक्कत नहीं है. Okay. ठीक है. But yeah, so since we are talking about कर देना. कट नहीं होगा, sorry. Once it's done, it's done. So okay. So since we're talking about clients, let's talk about marketing clients in Indore. Yeah. So अभी तक we have worked in Indore with brands, for brands and as agencies. So I think one more thing that we both can I think relate on कि हम दोनों टेबल के दोनों एंड से काम करके देख चुके हैं. हम पहले ब्रांड मैनेजर्स थे तो we have seen कि हम जब एजेंसीज को हायर करते थे तो हम क्या काम करवाते थे, and now we are agencies. So we know कि what ब्रांड्स को क्या देना है and what the brand manager actually wants. So उस हिसाब से सबसे वियर्डेस्ट तेरे क्लाइंट एक्सपीरियंसेस है इस मार्केट में, इंदौर के मार्केट में? आई थिंक वियर्ड एक्सपीरियंस यही है कि लोगों को पता है, मुझे ऐसा लगता है कि पीपल आर वेरी अनअवेयर हर चीज़ में. वो मार्केटिंग नहीं समझते हैं. दैट इज़ द वियर्ड थिंग. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हमको पहले उनको समझाना पड़ता है, क्योंकि उनका परसेप्शन कुछ और है मार्केटिंग को लेके. सही बोल रहा है. उनका परसेप्शन ये है कि ये पोस्ट बना दिया, ये इसको हमने सोशल मीडिया पे डाल दिया, ये उनका परसेप्शन है. हमको उनको समझाना पड़ता है कि सर दिस इज़ नॉट मार्केटिंग. आपके ब्रांड को हम बाकी ब्रांड से अलग कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं. करेक्ट. क्यों लोग आपको फॉलो करना चाहेंगे, क्यों आपके, अगर इफ़ यू आर अ कैफ़े, क्यों आपके कैफ़े पे आएंगे, वो वाइब, वो ये सब चीज़ क्रिएट करना. तो वो समझाना इज़ अ वियर्ड थिंग मेरे लिए, क्योंकि दिस इज़ कॉमन सेंस. आई थिंक इन माई ओपिनियन दिस इज़ कॉमन सेंस. सही बात है. मुझे ऐसा लगता है कि ना नॉलेज इज़ वॉट इज़ लैकिंग इन द मार्केट. बिकॉज फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी अगर मैंने एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाया जो कि मेरा AC काम नहीं कर रहा है, तो मुझे ज़ीरो नॉलेज है AC का. तो अगर वो मुझे बोलेगा कि इसका XYZ चेंज करना है, सो देन आई माइट से कि इसके चेंज करे बिना नहीं होगा क्या. बैक एंड पे दैट पर्सन विल थिंक यार इसको इतना नहीं पता कि उसके बिना चल रहा होता तो मैं चेंज ही क्यों करता. So I think that's it, that we have to educate our clients, And one more thing, स्कोप ऑफ मार्केटिंग इन इंदौर. मुझे ऐसा लगता है कि इंदौर में एक बहुत अच्छा पोटेंशियल है मार्केटिंग के लिए. किसी भी चीज़ के लिए इंदौर एक बहुत अच्छा पोटेंशियल है. अभी इंदौर ग्रो हो रहा है, हमारे साथ में ग्रो हो रहा है, हम उसके साथ में ग्रो हो रहे हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अभी इंदौर में हैं तो 10 साल बाद हो सकता है कि इंदौर भी बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाए और हम भी उनके साथ में बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाए. तो पोटेंशियल तो है, क्लाइंट्स में भी है और इंदौर में भी है ग्रो होने का. I actually agree to that. I completely agree because that is there. Indore is a mid-scale city. I feel it's not a metro yet, and it's not a very small town. Yeah. So what happens is it gives you the best of both worlds. Yeah. For example, metros में competition तो खत्म है. मतलब इतना ज़्यादा cut-throat competition है that a very new agency cannot survive until unless it already has a brand name inbuilt in it. Right? For example, Zomato खुद की marketing agency खोल देता है कल को, अगर आइडिया फॉर जोमेटो तो शायद चल जाए, बट एक नई एजेंसी नहीं चलेगी. तो मेट्रोज में दैट इज द केस. एंड देन व्हेन वी गो टू स्मॉल टाउन्स, वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि लोगों को पता ही नहीं है मार्केटिंग क्या है, सोशल मीडिया क्या है. उनके लिए फेसबुक इज जस्ट जहाँ पे वो टीवी सीरीज के छोटे छोटे क्लिप्स देख के 10 पार्ट्स में पूरा वॉच करते हैं. दैट इज वॉट दे अंडरस्टैंड. तो उनको एजुकेट करना इज वेरी डिफिकल्ट. तो इंदौर इज अ सेगमेंट वेयर, सिटीज लाइक इंदौर आर अ सेगमेंट वेयर the clients are very educated also, तो उनको समझाना is easy, but it's also not a metro, so it's easy to start something, and with the city we can also grow. और मुझे ऐसा लगता है कि इंदौर ऐसी सिटी है, इंदौर रन्स ऑन एक स्लैंग है इंदौर का, इंदौर चलता है व्यवहार पे. राइट. I completely agree. तो अगर
सेल्स इन इंदौर इज लाइक कि आपका सामने वाले से कैसा व्यवहार है, ठीक है। तो इट इज़ कम्प्लीटली ऐसा है इंदौर में अभी तो सीन, और हमेशा ऐसे ही रहने वाला है मुझे ऐसा लगता है। और हमारे लिए थोड़ा चीज़ें ईजी हो जाती है क्योंकि मैं भी बेसिकली इंदौर से ही हूँ, सो हाँ मतलब आई थिंक फॉर पीपल ऑफ इंदौर व्यवहार इज द एक्चुअल करेंसी। उनके लिए पैसे से बड़ी करेंसी व्यवहार है। आप 500 का नोट लेके एक दुकान पे जाओ, वो आपको भाव नहीं देगा, बाजू में उसका भाई खड़ा हो जाएगा और भैया कैसे हो। तो ऐसा and his full attention will be on that person. He'll ignore your 500 ka note also. So that is how it works. But you know what I'm scared of when clients try to handle their own pages and they don't understand it. Sometimes they upload things and sometimes they do things that can go very negative for them, which they don't understand. क्योंकि see, I agree any publicity is good publicity. वो मैं समझती हूँ, negative marketing works. But negative marketing में भी क्या negative portray हो रहा है वो बहुत एक छोटा सा, because it's a very thin line, right? So it has to be portrayed in a manner. When negative marketing is done with a proper strategy and planning, तब it can be successful and it can be done in a nice manner. But अगर वो खुद नहीं करी होती है और किसी और ने करी होती है या फिर हो जाती है या फिर किसी गलती से होती है, तो वो बहुत ज़्यादा डिजास्ट्रस रिजल्ट्स दे सकती हैं। हमारे पास में बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि आप नेगेटिव पब्लिसिटी करो, क्योंकि उनको पूरा नॉलेज नहीं रहता है बेसिकली। बट हमको ये चीज़ समझनी पड़ती है कि नेगेटिव मार्केटिंग इज गुड, बट टू मच नेगेटिविटी आप फिर उसको हैंडल नहीं कर पाओगे, राइट? करेक्ट। सो एक थिन लाइन होती है, वो ये होता है, दिस इज अ स्ट्रैटेजी। आई थिंक नेगेटिव मार्केटिंग इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। कुछ चीज़ें नेगेटिव में लेके गए, उसको थोड़ा सा परसेप्शन हमने लोगों का बनाया कि यार ये ऐसा है, और फिर हम कुछ ऐसा पॉजिटिव लेके आए उसमें। तो जितना भी उनके पास में नेगेटिव था, लोगों का माइंड ऐसा है कि वो ऐसे ही चेंज हो जाता है, पल पल में बदलता रहता है। सो नेगेटिव मार्केटिंग इज़ गुड, बट टू मच नेगेटिविटी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, ऑफ कोर्स सम दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि नेगेटिव मार्केटिंग में भी आप क्या मार्केट कर रहे हो, किस तरीके से उसको आप एस्केलेट कर रहे हो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी नेगेटिव मार्केटिंग नहीं कर सकते हो, इट हैज़ टू बी समवॉट क्रिएटिव। और मतलब बहुत ब्लंडर्स होते हैं और इट्स अ वेरी रिस्की थिंग टू डू इट। बट आई तो लव नेगेटिव मार्केटिंग, आई लव नेगेटिव मार्केटिंग। ट्रोलिंग इज द बेस्ट मार्केटिंग टुडे। ट्रोलिंग वर्क्स लाइक एनीथिंग। मतलब you might have 10 different pages on your Instagram's algorithm that you follow, so वो तुझे उस टाइप का कंटेंट दिखाता है, मुझे 10 अलग पेज दिखाता होगा, मेरे 4 फ्रेंड्स को और अलग 10 टाइप के पेजेस दिखाता होगा। बट आई एम श्योर हम सब सेम टाइप का ट्रोलिंग कंटेंट फॉलो करते हैं। मीम्स आर द बेस्ट way to market your business. I agree. Meme marketing works like anything, guys. Like it actually works like anything. But it is like that. So negative marketing, the first name that is coming to my mind, which is very recent, is MBA Chai Wala. I mean, you know, whatever happened, it went to a boom. It was in a very good space. Then a lot of negativity came around, but it gave him a very good mileage also. मतलब पहले I think he was famous for the chai, and then after the marketing, he himself became a brand. Praful Bilore became a brand. So, of course, now, since it was a disastrous thing, I don't think it was done intentionally. Yeah, it is not done intentionally. See, the thing is, पहली बार मेरे हिसाब से ये चीज़ कोई बता रहा है, हुआ ये था, मुझे ऐसा लगता है और सब टीम को ऐसा लगता है कि उनकी नेगेटिव मार्केटिंग कराई गई है। जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं, उन्होंने बहुत पैसे खर्च करे हैं उनकी नेगेटिव पब्लिसिटी करने में, बट वो थिंग इतनी वर्क करी नहीं। सी, अगर कोई नेगेटिव पब्लिसिटी आपका करा भी रहा है, तो अगर इफ़ यू आर अ गुड पर्सन, आपका बिजनेस सही है, आपका बिजनेस मॉडल सही है, तो वो चीज़ें अफेक्ट नहीं करती है। बट बहुत लोगों ने उनकी नेगेटिव पब्लिसिटी कराई है। लोगों को ऐसा लगता है कि शायद वो खुद करते होंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, वो खुद नहीं करता है वो चीज़ें। You are handling his marketing right now, right? Yeah. You're handling his marketing, right? So what I loved about his entire marketing was, so there were a lot of things going on. बहुत mess create हो गया था and लोग बहुत trolls कर रहे थे। वो famous हो रहा था but negatively famous हो रहा था, बहुत trolls हो रहे थे। And then उसने देखा कि यार मेरे जो भी competitors हैं वो इतना अगर रायता फैला ही रहे हैं, so why not do something about it? And then finally he was very quiet about it. उसने कुछ भी हल्ला नहीं किया जब ये सब हो रहा था। Then one day match वाले दिन he tweeted, bro, he's a marketing genius. He's a marketing genius. He tweeted that, you know, with Sri Lanka he posted a picture and saying कि लो अब thank you बोलो, something like that. He's a marketing genius. From the starting, he's a marketing genius.
I have learned many things from him, from the team. So he is doing good. Yeah. Yeah. That's very nice. That's very nice. I mean, you have first-hand experience, of course, so you can tell better. But yeah, but so yeah, I understand what it is. But one thing that I do not like about any kind of marketing, and people are doing it a lot these days, is please don't merge your brand with the wrong kind of influencers. पीपल डोंट अंडरस्टैंड मतलब क्यों एक फैशन ब्रांड का प्रमोशन एक फूड ब्लॉगर कर रहा है. पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि जस्ट बिकॉज उस इंसान के पास रीच है इसका मतलब ये नहीं कि वो रीच आपके काम की है. नहीं है काम की, राइट. सो लोगों को चीज़ें समझनी पड़ेगी, और वही है कि लोग अभी अनअवेयर है, मुझे ऐसा लगता है. तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को हमको भी समझनी है. हम कोई ऐसा नहीं कि हम मार्केटिंग में बहुत आगे हैं, हम भी सीख ही रहे हैं और सीख के चल रहे हैं आगे. Of course, but छपरी इन्फ्लुएंसर्स है ना. हाँ, कुछ इन्फ्लुएंसर ऐसे भी है, जैसे ऐसे नाम हम तो नहीं लेना चाहिए, बट जैसे हो गया डॉली चाय वाला एंड ऑल. आई थिंक कि ठीक है, वो उनकी अलग स्टोरी है, और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ गलत नहीं है उसमें. वो जो कर रहे हैं वो भाई, हम बहुत सारे लोगों से बहुत ज़्यादा अभी अर्न कर रहे हैं, ठीक है. तो अभी एक न्यूज़ आया था कुछ IIT वाला कि 4 लाख का पैकेज हो गया है IIT का मे बी, और डॉली चाय वाला उससे ज़्यादा कमा रहा है, ठीक है. तो इट इज़ सोशल मीडिया आपको कुछ भी बना सकती है. अगर आपके अंदर कुछ चीज़ है जो लोगों से अलग हट गया है, वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कुछ भी हो, सोशल मीडिया आपको कुछ भी बना सकती है. और इंडिया में ऐसा होता है. पुनीत सुपरस्टार, कितने सारे ऐसे लोग, लॉर्ड पुनीत, वो बंदे ने अकेले ने अपने मीम स्टार्ट किए. वो एक मोबाइल उसने अपना चालू किया, उसने अपने वीडियो बनाना चालू कर दिए, और आज हम सब उसके बारे में बात करें. बड़े बड़े ब्रांड्स उसके साथ में कोलैबोरेट करते हैं. अभी रिसेंटली स्विगी ने उसके साथ में कोलैबोरेट किया, डॉली चाय वाला के साथ में कोलैबोरेट किया, और बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर. सो स्कोप बहुत ज़्यादा है. आप जो कर रहे हैं आप वो करते रहिए. इट डजेंट मैटर आप छपरी है कुछ भी है, वो बस एक टर्म है, मुझे नहीं लगता है, बट वो सही है. अब जो एट एंड सबका यही होता है कि पैसे कमाने, वो पैसे कमा रहे हैं. एंड आल्सो बट कंसिस्टेंसी इज द की. आप अगर ट्रोल होके भी फेमस हो रहे हो ना, तो आपको अपना जो नीश है उसको छोड़ना नहीं है. फॉर एग्जाम्पल दीपक कलाल हैड अ वेरी नाइस बूम, बट नाउ ही इज नॉट देयर इन द मार्केट एनीमोर. I would say somebody who is constantly been on lines throughout, after being trolled so much, after being through a lot of things, still rising up is Urfi Javed. No matter how much she was trolled, she kept doing what she loved, and she's like, she has a series now, yaar. Yeah. I liked her series. I really liked her series. So that is, we should do what you're doing and just keep doing it. If you're good at your work, you will reach somewhere. You will definitely reach somewhere. Yeah. तो आई बिलीव द लेटेस्ट मार्केटिंग जीनियस सोशल मीडिया जिसने क्रैक कर लिया, आई फील इज Ori. That guy is, I love that Ori. guy is everywhere. I love Ori. Like I really love him. Yeah. The way that guy just emerged from nothing and now he's everywhere. He has cracked social media. He has cracked how to do it. Have you seen his feed? He put these caricatures as covers of all the reels. I love that. Basically strategy है, उसकी स्ट्रैटेजी भी बहुत अच्छी है, और मार्केटिंग है. दिस इज व्हाट मार्केटिंग है, कि आप हर जगह जा रहे हैं, आपने किसी के हाथ पे ऐसे रख के फोटो खिंचा रहे हो, एक ट्रेंड बन गया, आप लोग आपको पे कर रहे हो उस चीज़ की. करेक्ट. आप उसके साथ अगर सोशल मीडिया के साथ आप बिजनेस ला पा रहे हो, तो दैट इज व्हाट जीनियस स्ट्रैटेजी इज, और वो उस चीज़ में बहुत सही है. करेक्ट, आई एग्री. या तो अभी तो जो लेटेस्ट ट्रेंड सबसे ज़्यादा जो चल रहा है, जो एक वर्ड, इट इज़ अ वेरी फैंसी वर्ड दैट पीपल आर यूजिंग दीज डेज, इज परफॉर्मेंस मार्केटिंग. माइक ऑन है ना? ठीक है. So performance marketing. Yeah. So it's a very new and fancy word, and I don't understand performance marketing. Okay, let me be very clear. In our agency, we are different people, and everybody has different roles. So performance marketing is also one role that somebody else handles and everything. But so I am not a very genius at it, but I know what performance marketing is, and I know how to do it, and I know how to get it done. So what I feel is, who called it performance marketing and not paid ads? Performance marketing is basically paid ads. वो किसी एक बंदे ने टर्म ला दी है उसको और थोड़ा अपना महंगा करने के लिए. सर्विस, there is nothing. It is just paid ads. I would like to say sorry to all performance marketers out there. It is a very great field. We love you.
Thank you Yeah. for helping us. Yeah. So this is nothing. But मुझे yeah, लगता है but- ये अगर आप मतलब मेरे हिसाब से पहले भी यही टर्म थी जब मेटा नहीं था, जब फेसबुक था तो हम उसको फेसबुक एड्स के नाम से बोलते थे, गूगल एड्स के नाम से बोलते थे, तो उनने 3-4 चीज़ों को कंबाइन करके उसको एक नाम दे दिया पर उसके लोगों को, जिसको हम बोलते हैं Performance marketing, exactly. But it is paid ads at the end of the day. थोड़ा सा एनालिटिक्स डाल दो और हाँ, that's it, right? that's it, Body right. copy डाल दो, एनालिटिक्स डाल दो, ad copy डाल दो, that is performance That is marketing. performance marketing, But it's difficult, basically. you know, it's not easy to do. It is not easy. It is very difficult. It is very difficult. अगर easy होता तो भाई सब कर रहे होते. Exactly, and you know why it is difficult? Because the ROI is upfrontly visible. Yeah. It is something that you can evaluate very easily. Social media still you cannot evaluate that easily. आप बोल सकते हो कि इतनी रीच आ रही है, धीरे-धीरे आपको ROI मिलेगा. But performance marketing में the client can directly come to you and say कि हमने इतने पैसे लगाए थे, इतने रुपए की हमारी लीड आ रही है, हमें ये वाला बंदा इतने रुपए की लीड ला के दे रहा है. It is not easy. very Basically it is a skill. अभी ये skill सब में नहीं होती है. अभी मान लो मैं मार्केटिंग में अच्छा हूँ, तो हो सकता है कि मैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग में उतना अच्छा नहीं हूँ, तो ये स्किल है और ये बहुत ज़रूरी स्किल है. मैं ऐसा नहीं बोलूँ कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज पेड एड और मैं कुछ इजी चीज़ है, वो बहुत डिफिकल्ट चीज़ है वो. There's one more myth in the market that every marketing person is the same. There are n number of fields in terms of marketing. Marketing manager is different, brand manager is different, performance marketing manager is different. Somebody who does SEO is different. Somebody who knows how to do digital marketing is different. So they're all different ways, various different fields. Please don't compile into one. Please don't compare, please. Please. Social media marketer is also different. So It is also different. अगर आप सब लोगों को कंबाइन कर देंगे कि एक ही इंसान में आपको सब क्वालिटी चाहिए, तो वो भगवान नहीं है भाई, वो नहीं हो सकता है. तो हमको ये चीज़ समझना पड़ेगी कि हर चीज़ के लिए आपको एक स्पेशलिस्ट बंदा चाहिए रहता है. Correct. इट कुड बी सोशल मीडिया, इट कुड बी पेड एड्स, इट कुड बी एसईओ, Correct. बट आप किसी एक बंदे से हर चीज़ की उम्मीद नहीं कर सकते. दैट इज़ व्हाई वी नीड टीम. Exactly, that's why we need a team. Yeah. Exactly. And you know, also marketing strategies are something very different. Yeah. People don't understand that there's one person whose job is to only and only give marketing strategies, and that is what, you know, that person is charging for. Clients and general people assume that marketing strategies are very easy to make, but it's not. It is It's not very easy. difficult to It make. is very difficult because strategy is like, अभी स्ट्रैटेजी में सब कुछ आ जाता है, फ्रॉम ब्रांडिंग, ठीक है, फ्रॉम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, फ्रॉम प्रमोशन एंड स्ट्रैटेजी में फ़र्क होता है. ठीक है, स्ट्रैटेजी इज लाइक सब चीज़ को आप कंबाइन कर रहे हैं. उसमें एसईओ हो सकता है, उसमें पेड एड्स हो सकते हैं, Correct. उसमें ऑर्गेनिक मार्केटिंग हो सकती है, Offline marketing. ठीक है, हो सकता ऑफलाइन है. मार्केटिंग हो सकती है. ये सब कुछ मिला के एक स्ट्रैटेजी बनती है. Correct. ठीक है, तो बहुत डिफरेंस है चीज़ों में. Exactly. People don't understand that, but it's very sad. But again, I feel in the field of marketing, general public ko education is like it's lacking up to a very great extent. I mean, it is lacking. People don't understand it. People really don't understand it because this is very new. yeah, I think this is very exactly. new. And it's a vast field, yaar. Vast field. कितना मतलब ये नई चीज़ है. एक्चुअली हम लोग भी अभी सीख ही रहे हैं और सीख के आगे बढ़ रहे हैं. वैसे लोग भी जो हमसे हम अभी एजेंसी में शिफ्ट हुए हैं, अभी हम जैसे सीख रहे हैं, हमसे जो पहले की जनरेशन है वो फेसबुक चलाती थी. ठीक है, Correct. अभी वो फेसबुक पे, अभी वो इंस्टाग्राम पे नहीं आया, तो वो इंस्टाग्राम की चीज़ें समझेंगे. जब तक हम नहीं समझाएंगे तो वो कैसे समझेंगे, राइट? करेक्ट. सो अभी हमको लोगों को एजुकेट भी करना है मेरे हिसाब से, और यही सही तरीका है. लोगों को एजुकेट कीजिए और फिर अपना सेल्स I कीजिए. agree. एक तो you know, and people have to understand that any content to work on social media, it is very difficult because कंटेंट आप कितना भी अच्छा बना लो, अटेंशन का, यूजर का अटेंशन स्पैम इतना ज़्यादा कम है दैट 3 सेकंड में लोग चेंज कर देते हैं. यार मैं खुद कर देती हूँ. व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट एनीबडी एल्स? आई डू दैट. आई एम श्योर यू आल्सो डू. या यू नीड अ हुक. मुझे ऐसा लगता है कि जब से टिकटॉक आया, टिकटॉक के बाद में इंस्टाग्राम ने रील्स इंट्रोड्यूस करी है, उसके बाद में यूज़र का अटेंशन स्पैम इतना कम हो गया है कि वो मैं दिन भर मैं 10, 20, 50, 100, 200 हम जब देखने बैठते तो मेरे हिसाब से मेरा काम सोशल मीडिया मार्केटिंग का, राइट? तो मुझे कॉन्स्टेंटली रील देखना पड़ती है ना दिन भर बैठ के.
तो मैं भी किसी रील पे तब रुकता हूँ जब मुझे कोई कैची हुक मिलता है, ठीक है। Correct. मुझे कुछ ऐसा मिलता है कि जिसको मुझे देखना पसंद है, तो और मैं एक दिन में इतना डाटा कंज्यूम कर रहा हूँ, और मेरे जैसे सभी है जो इतना डाटा कंज्यूम कर रहे हैं, इस वजह से लोगों का अटेंशन स्पैम बहुत कम हो गया है। करेक्ट, एग्जैक्टली, दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट। सो इसलिए बस कंटेंट इतना अच्छा होना चाहिए, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक गुड कंटेंट। मतलब लोग यार सी, अगर उनको कंटेंट अच्छा लगता है तो लोग बैठ के 1-1 घंटे के पॉडकास्ट देख रहे हैं, और जिसको जब कंटेंट अच्छा नहीं लगता तो वो 3 सेकंड में, 2 सेकंड में, या सामने आते ही स्क्रॉल अप कर देते हैं। दे डोंट, बट आई डोंट थिंक, आई फील लाइक कि दिस इज बहुत अभी गलत है कि अटेंशन स्पैम इतना कम हो चुका है लोगों का कि क्योंकि ये चीज़ हम देखेंगे कि डेली लाइफ में भी हम अगर कंटेंट बना रहे तो हमको हमारी बहुत सारी रील्स में से, बहुत सारी पोस्ट में से कुछ ही ऐसी होगी, 100% हम सब में देते हैं, बट कुछ ही ऐसी चीज़ें होगी जो वायरल जाती है, ठीक है। करेक्ट, एग्जैक्टली। तो अटेंशन स्पैम तो कम हो गया। जैसे हमारी एक क्लाइंट की रील है जिसमें ओवर 60 मिलियन प्लस व्यूज़ है। एक रील नहीं है, उसकी 2 रील है जिसमें 60 मिलियन प्लस व्यूज़ है, एक रील में 30 मिलियन प्लस व्यूज़ है। हम उसके साथ में 1 साल से काम कर रहे हैं, राइट। तो ये है कि 1 साल कंटेंट डालने के बाद में आपकी 3-4 चीजें वायरल जा रही है, करेक्ट, एग्जैक्टली। सो दिस इज व्हाट नाउअडेज हम 100% से सब में देते हैं, बट कुछ चीजें ही होती है जो लोगों को समझ आती है। पेशेंस इज द की, पीपल डोंट अंडरस्टैंड, यू हैव टू बी पेशेंट व्हेन इट कम्स टू दीज थिंग्स। ऑल्सो ये जो अटेंशन स्पैम कम हुआ है इसके कारण वी हैव स्टॉप्ड रीडिंग। मैं तुझे अभी अगर एक बुक का पैराग्राफ दूं तो नहीं पढ़ पाएगा ब्रो, आई एम 100% श्योर तू नहीं पढ़ पाएगा। मुझे सुनना ज्यादा पसंद है। ऑडियो पॉडकास्ट, जस्ट इमेजिन वी आर नॉट एबल टू रीड, वी कैन नॉट रीड राइट नाउ। आई रिमेंबर आई वाज so much into reading, तो याद होगा स्कूल टाइम पे, I was so much into reading. I used to read a lot of novels, but I don't remember when was the last time I actually held a book in my hands and read it. एक तो टाइम तो of course there is no time because everybody is so busy in hustling these days. Also my attention span is somewhere, you know, it's gone. I cannot just sit and look at a page. Yeah, I think हम सब सिर्फ ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। पहले पढ़ने का ट्रेंड होता था, आजकल देखने का ट्रेंड है। हमको ऐसा लगता है, मुझे ना जस्ट गो विद द फ्लो। पहले हम रीड करते थे, अब हम सुनते हैं, तो जस्ट गो विद द फ्लो, इट इज़ वेरी नॉर्मल। अभी लोग बोलते हैं कि AI आ गया, वो सबकी जॉब खा जाएगा। आई डोंट थिंक सो। वो आपको हेल्प करेगा, मुझे ऐसा लगता है वो आपको हेल्प करेगा। जो चीज़ें आपको नहीं आती है वो चीज़ें आपको बताएगा, वो आपकी जॉब नहीं खा जाएगा। मुझे नहीं लगता कि मेरी कोई जॉब खा सकता है, कि जो दिमाग मार्केटिंग का मेरे अंदर है, मुझे नहीं लगता कि वो AI वैसा कुछ प्रेजेंट करके सामने दे पाएगा। भाई अगर आप AI से कोई रिसर्च भी कर रहे हो तो आपको उसमें यू हैव टू यूज योर ओन ब्रेन। Of course, I mean, so what is happening is AI cannot provide personalized, humanized strategies when it comes to marketing, because marketing is all about, just like you said in the starting of this podcast, that marketing is about understanding your customers. It is about observation. Yeah. Understanding marketing your customers. Marketing is nothing, just observation. Correct. I agree. Yeah. But you know what makes me really sad? Especially in a city like Indore. I don't know about other cities. I have not worked. I've worked for the brands. I've not had my agency in different cities. We're right now operating in Indore. So what I've seen, the culture in Indore is there are a lot of agencies who are actually fooling clients. Yeah. Like फर्जी agencies है बहुत सारी. Actually, 90% of the agencies in Indore and in India, I don't know, but they are fooling clients. Yeah. I think Diwali post, Holi post, ये post, this is not marketing. This is just, I don't know what it is. Exactly. वो यही कर रहा है. Exactly. मुझे और हम जैसे लोगों को यही myth burst करना है, भाई this is not marketing. This is just social media posting, और उससे आपका कुछ नहीं होने वाला है। अगर मेरी फीड पे कोई आएगा हैप्पी दिवाली पोस्ट, मैं उसको स्क्रॉल कर दूंगा, वो मेरे किसी मतलब का नहीं है। मुझे 10 लोग विश कर रहे हैं दिन भर से, मैं क्या करूँगा उसका? Until unless वो दिवाली पोस्ट में एक छोटा सा पपी है जो कहीं जाके छुप रहा है, सो इमोशनल एलिमेंट इफ इट्स देयर, ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि दिवाली पोस्ट और ये सब गलत है, बट आप उसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं? आप लिख देंगे कंटेंट के अंदर हैप्पी दिवाली, तो क्या है ये? मतलब मुझे नहीं लगता ये कुछ भी है। आप आपके ब्रांड को उस फेस्टिवल से कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं? दिस इज व्हाट करेक्ट।
So there's this term called wishing mailers. Okay, wishing mailer is something. For example, back when I used to work for hotels, I used to get wishing mailers made for all of my HODs and the staff. Okay, so wishing mailer is something एक creative होगा, उस पे हैप्पी दिवाली लिखा होगा, उस पे fireworks होंगे of course because it's दिवाली, दिया होगा and some बहुत beautiful सा image होगा और उसके नीचे एक छोटा सा message होगा, wish you a very prosperous or whatever, happy Diwali, journal, warm regards, for example XYZ of XYZ company, your designation, your company's name and your name. इसको बोलते हैं wishing mailer. I'm so sad to see लोग wishing mailers उनके social media पे as a post upload कर देते हैं. That is for a person to. They are fooling you guys. They are fooling you guys. Don't fall for the trap. And agencies who are doing it, please stop doing it. You're ruining it for everyone. Like you're actually ruining it for everyone. That is so sad to see. अभी जैसे मैं स्टार्टिंग में बोला था कि मुझे क्लाइंट्स बोलते हैं कि हमारे इतने फॉलोअर्स बढ़ा दो, ये कर दो. ये चीज़ कहाँ से आई है? ये जो एजेंसी है जो लोगों को फूल बना रही है, वो पागल बना रही है भाई लोगों को कि हम आपके इतने फॉलोअर्स बढ़ा देंगे. वो बढ़ा देंगे बट दे आर फेक फॉलोअर्स. आप उसका क्या करोगे? Exactly. They are paid followers. They are paid followers. वो किसी काम के नहीं है. Correct. Every paid follower you buy, you decrease your reach by a lot because Instagram को लगता है अब वो एक fake, what are fake followers are basically dead accounts. Dead accounts जो आपके पेज को फॉलो कर देंगे बट अल्टीमेटली दे आर डेड अकाउंट्स. वो सिर्फ फॉलो करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे. उनका पेज एक्टिव नहीं है कि कोई पीछे बैठ के स्क्रॉल कर रहा है. इट्स जस्ट एन अकाउंट और उसके फोन में शायद ऐसे 50 अकाउंट्स होंगे एंड पीपल पे देम टू फॉलो सो एंड सो प्रोफाइल्स एंड इट्स ऑल्सो डन ऑटोमेटिकली थ्रू कंप्यूटर्स. So it's a dead account. So what will happen? Instagram will feel कि अगर आपके for example 50,000 followers हैं और आपके पोस्ट पे सिर्फ 500 लाइक्स आ रहे हैं, क्योंकि आपके तो डेड अकाउंट्स है ना, वो बैठ के लाइक नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ फॉलो करके छोड़ चुके हैं. So Instagram को लगता है आपका कंटेंट इतना ज़्यादा खराब है that nobody is liking it and as a result Instagram degrades you. So stop buying fake followers. It is not worth it. Trust me, it's not worth it. I think we should make educational marketing videos. Yeah, we have to. One day I think ये ज़्यादा important है लोगों को educate करना, क्योंकि ये मिथ उनके लिए भी गलत है और हमारे लिए भी गलत है और इनफैक्ट सबके लिए गलत है, क्योंकि वो चीज़ें किसी काम की नहीं है जो अभी तक मार्केट में सर्व करके दी जा रही है लोगों को, क्लाइंट्स को सर्व करके दी जा रही है. उस वजह से क्या होता है ना, सारी मार्केटिंग एजेंसीज को एक टाइम पे क्लाइंट समझता है कि यार ये हमको बेवकूफ़ बना देंगे, उनका दिमाग में ऐसी चीज़ें आ जाती है. राइट. तो वो चीज़ किसी के लिए भी सही नहीं है. तो जितनी भी एजेंसी ऐसी है, मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को कोई रूल लाना चाहिए उनके लिए और इसको बंद कराना चाहिए. जितनी गवर्नमेंट को रूल ही ले आना चाहिए. वाह यार, वेरी गुड, वेरी नाइस. Yeah, it was fun having this discussion with you, and we will make that podcast where we will educate you guys. Sure, we will make that videos for sure. I would love to. Even I would love to. We'll definitely do that one day. Yeah, so thank you so much for being here. I really liked having you here. And yeah, see you. I mean, of course, I will see you soon. That is not an option for me. But yeah. So yeah, I think that's it. So thank you for watching, and please stay tuned for more such content. Please like, share, subscribe. And subscribe, guys. Yeah, please subscribe, and we'll come up with more such videos, and we'll come up with more engaging content, more good content. We just spoke about like that. And I hope आप 3 सेकंड में स्क्रॉल अप नहीं करोगे. Press the bell icon, guys.